Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. That we require to see what is our environment is, right? So the environment is one of these 8 types. Okay, so we will see one by one what are these environments are and in which condition we can perceive this environment. Okay, so that we will see. The first is fully observable and partially observable environment. Now the terms itself says this. What is fully observable? Fully observable means when all the sensors are available and through all the sensors agent can access the complete state of the environment. That is what the fully observable environment. It means whatever the data required for the process or required to solve the problem that available through sensor. Okay, so now we are able to grasp all the information knowledge from the environment through sensor. So that is what the fully observable. Okay, so यहाँ पे sensor detects all aspects that are relevant to the choice of action or whatever the problem is. Okay, now if we are talking about partially observable, it means what? That environment is not the sensors are not perceiving environment fully. Okay, maybe possible some of the sensors are not working or we have not implemented, and based on the you can say incomplete data we want to achieve to solve our problem. Okay, so that is also there. So an environment might be partially observable because of noisy and inaccurate sensor, or because part of the state are simply missing from the sensor data. So that is possible. And sometimes maybe possible you are having full-fledged AI system, but sometimes some sensors are not working in between. So system has to work based on available information. Maybe that information is incorrect, but that AI system should be that much capable to understand the things through incomplete information also. So that is partially observable environment. Okay, so if we are talking about vacuum cleaner थिंग, तो वैक्यूम क्लीनर में हमें क्या मिल रहा था? फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है, वहां पे कहाँ पे क्या स्पेस है सब कुछ पता है, सारा जो भी चाहिए वो सब हम सेंस कर रहे हैं. तो दैट इज फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट. ओके, और बट अगर हम ऐसी बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रूम्स है, ठीक है, तो वो रूम में हम दूसरे रूम में क्या चीज है वो पर्टिकुलर वैक्यूम क्लीनर को उस टाइम पे नहीं पता है, तो वही टाइम पे वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट हो जाएगा. क्लियर हुआ? सो उस टाइम पे उसको नए एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट पार्शियली एंड फुल्ली detectable environment. Now the another feature of environment is deterministic and stochastic. Now what is this deterministic? Deterministic का मतलब ये होता है कि something which is regular और हम उसको completely पता होता है हमें कि next step क्या होने वाला है. ठीक है, so it's a kindly obvious things which come with the environment. Okay, so that is what deterministic. तो हम अगर technically बात करें तो if an agent's current state and selected actions can completely determine the next step of the environment, then such environment is called deterministic. So now everything is, you can say, predefined. Okay, so every state of the action is knowable, and easily sensor can sense the environment, and actuator can do the actions based on the sensing knowledge. Okay, so that is what deterministic. But sometimes your environment is not that much regular, or maybe having random in nature. Okay, so that is called stochastic environment. और अचानक से कुछ आ जाता है which is not pre-planned or predefined. Okay, so that is stochastic. Now many times AI system जो होता है वो mainly stochastic environment के लिए होता है, ना कि deterministic. अगर डिटर्मिनिस्टिक होगा तो एआई कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत कम हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है, सो अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल है टैक्सी ड्राइवर, ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस कार, यू कैन से दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्टॉकेस्टिक एनवायरनमेंट. कहीं से भी कुछ भी आ सकता है. ठीक है, हमें नहीं पता है कि नेक्स्ट मोड पे टैक्सी आ जाएगी या फिर खड्डा आ जाएगा या फिर डाइवर्जन आ जाएगा, दैट वी डोंट नो. सो द एनवायरनमेंट इज नॉट प्री डिफाइंड, एंड समटाइम्स पेडेस्ट्रियल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स आर देयर ऑल्सो ऑन रोड.
तो वो भी आ जाएंगे, पता नहीं है. तो दैट इज व्हाट अ रैंडम इवेंट यू कैन से इन द एनवायरमेंट. सो दैट इज योर स्टोकेस्टिक एनवायरमेंट जो आपको परसीव करना होता है. ठीक है, तो इस टाइप का भी एनवायरमेंट हो सकता है. Sometimes the environment is episodic or sequential. Now, what is this episodic? When the agent's single pair of perception is required. It means only current state is important for the problem. Clear? So they don't have to go to the history, you can say. Okay, so that is what the episodic environment. The quality of the agent action does not depend on other episode. ओके, सो प्रीवियसली क्या हुआ था, हिस्ट्री में क्या हुआ था, उसके बेस पे उसको नेक्स्ट स्टेप नहीं लेना है. वॉट एवर द करंट स्टेप इज, उसके बेस पे ही उसको आगे जाना है. क्लियर हुआ? सो दैट इज व्हाट अ एपिसोडिक एनवायरनमेंट. एंड अनदर वन इज सिक्वेंशियल एनवायरनमेंट. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड ऑन परसेप्ट सीक्वेंस, राइट? सो परसेप्ट सीक्वेंस क्या होता है? परसेप्ट सीक्वेंस मीन्स ऑल द हिस्ट्री steps also required to know for the future step. That is what the percept sequence, and that type of environment is called sequential environment. So if we are talking about taxi driving, or if we are talking about chess, okay, so when we are talking about chess, तो chess के लिए next जो भी step play करना है, उसके लिए हमें previously क्या किया था वो पता होना चाहिए. Of course that is not episodic. ठीक है, कि अभी का अभी करो, पहले क्या किया था पता नहीं. बट अगर आप वैक्यूम क्लीनर की बात करो तो वो एपिसोडिक है. वो करंट स्टेट को देखकर काम करता है, उसको पता नहीं कि पहले क्या किया था. ठीक है, तो वो ए से बी में, बी से ए में, ए से बी में जाता रहेगा. ठीक है, उसको पता है कि ए में, उसको पता नहीं है कि ए में पहले वो क्लीन कर चुका है, फिर भी वो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट एपिसोडिक एंड सिक्वेंशियल एनवायरनमेंट. ओके, another one is static and dynamic environment. Now may be possible your environment is changing over time. That is what the dynamic is. Okay, so now again driverless car is a dynamic environment. Okay, तो कभी भी कोई भी आ सकता है. बट अगर हम बोर्ड गेम की बात करते हैं तो स्टेटिक एनवायरमेंट होगा. आप स्नेक एंड लैडर खेल रहे हो तो एनवायरमेंट स्टेटिक है आपका. ठीक है, सो दैट इज व्हाट स्टेटिक एंड डायनेमिक. But sometimes we are having semi-dynamic environment also. It means what? Environment is not changing frequently, but may change over the period of time. That is also possible. ठीक है, so that is semi-dynamic environment. Clear हुआ सबको? So that is another feature of environment. Another one is discrete and continuous. Okay, so discrete and continuous already we have learned in mathematics. So यहाँ पे क्या है? discrete, if there are a limited number of distinct states, okay, clearly defined for perception, then it is called discrete environment. Clear हुआ सबको? ये discrete environment क्या है? Okay, we are having that steps available and we require to process with that step only through sensor. Okay, so that is what discrete. Okay, so यहाँ पे chess game की अगर बात करें हम लोग तो all the rules, whatever the rules are there to play that game, that should be predefined for the machine. Okay, and that particular rules also they have to follow. ठीक है, that system has to follow. So that is your discrete environment. But continuous environment में क्या है? That states are not predefined, और states कौन से है वो भी नहीं पता है. ठीक है, so that is your continuous environment like driverless car. Okay, so this is also a feature of environment. Now another feature is single agent versus multi agent. Okay, so now what is when only one agent is required for the environment, then it is called single agent. And if multiple agents required to operate the environment, then it is called multiple agent environment. Now the example is if crossword puzzle है तो single agent काम करेगा. But suppose you are having some board game like chess playing game, okay, and both the person is your system. Okay, system ही खेल रहा है पूरा, तो दोनों साइड पे जो है वो system ही काम कर रहा है. So we required 2 agent at a time, and then it is called multi-agent environment. Clear? So in that point of time, 2 agent will work at a time to solve the puzzle. Clear हुआ सबको ये? So that is multi-agent and single agent environment. Then after, another feature of environment is known and unknown environment. Now that is also possible.
ठीक है, कि समटाइम्स योर एनवायरमेंट इज नॉट एट ऑल नोन. ओके, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. The environment itself, the distinction refer not to the environment itself but to the agent state of knowledge about the environment. Okay, so state environment के बारे में किसको नहीं पता है? एजेंट को पता ही नहीं है. ठीक है, तो उस टाइम पे वो जो होगा वो अननोन एनवायरमेंट हो जाएगा. इन नोन एनवायरमेंट द आउटकम फॉर ऑल द एक्शंस आर गिवन. Okay, so it means what? If all the rules for the system is available, okay, to the system, then it is called known environment. Okay, but अगर वो rules नहीं पता है तो उसको क्या बोला जाएगा? unknown. ठीक है. So suppose if we are talking about let's say VR games, okay, जो हम लोग PS3 PS4 में खेल सकते हैं. ठीक है. So in that point of time what happened? One agent, single agent system is there. One side human player is there and another side machine is there, right? So in that point of time मशीन को कैसे खेलना है मशीन को पता है, पर सामने से कैसे आएगा? सपोज हम बैडमिंटन गेम का अगर बात करते हैं तो उस टाइम पे वो प्लेयर कैसे खेल रहा है वो एग्जैक्ट आइडिया एजेंट को नहीं है. ठीक है. सो दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट इज वेरी मच अननोन फॉर द एजेंट. क्लियर? ठीक है. बट अगर आप सॉलिटर गेम की बात करते हो या फिर कोई स्नैक्स एंड लैडर या ऐसे लूडो की बात करते हो तो उस टाइम पे उसका पता होता है. ठीक है, क्योंकि उसके रूल्स डिफाइंड है, वही डिफाइंड रूल पे काम करना है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट वीडियो गेम, देन दैट रूल्स आर नॉट डिफाइंड रूल्स. क्लियर? सबको समझ में आया? सो दैट इज व्हाट नोन एंड अननोन एनवायरमेंट. Another one is accessible and inaccessible environment. Sometimes your environment is also not accessible. Okay, तो उसको कैसे बोलेंगे? If an agent can obtain complete and accurate information about the states of environment, then such environment is called accessible. अगर आपको सेंसर के थ्रू आप सेंस कर रहे हो, परसेप्ट कर रहे हो तो वो accessible है. इट मीन्स. ठीक है. तो उसका एक एग्जांपल है यहाँ पे. कौन सा है? एम्प्टी रूम्स whose state can be defined by its temperature is the example of accessible environment. ठीक है, जहां पे आपको सिर्फ सेंस क्या करना है? टेम्परेचर, एंड यू आर इजीली यू कैन इजीली डू दैट. ओके, सो दैट इज accessible environment. ठीक है. Information about an event on earth, okay, if we are talking about this, then that is inaccessible environment, because there are so many events occurring at a time on earth. We cannot access all the events. Okay, so that is inaccessible environment. ठीक है. So that way we are having total 8 type of features available for environment, and based on this different environment we require to sense our data differently. Now again, as per the AI problem, that environment is also different. Okay, not all the time we are not having same type of environment, of course. ठीक है. ऐसा भी नहीं है कि at a time only one feature is available in the environment. Okay, हो सकता है कि वो known और accessible हो, सिंगल एजेंट भी हो, ठीक है, डिस्क्रीट भी हो, स्टैटिक भी हो, एपिसोडिक भी हो सकता है. मल्टीपल फीचर्स आर देयर विद द एनवायरनमेंट. दैट इज पॉसिबल. ठीक है. Okay, so these are the 8 types of features available in the environment. This is also one of the question university can ask for theory paper. ठीक है, तो वो हम यहाँ पे हैं. अभी हम थोड़े इसकी बात करें टास्क एनवायरनमेंट की बेस्ड ऑन गिवन प्रॉब्लम. तो अगर हम क्रॉसवर्ड पजल की बात करते हैं, ठीक है, तो एनवायरनमेंट कैसा होगा? तो फुल्ली ऑब्जर्वेबल, डिटर्मिनिस्टिक बिकॉज ऑल द रूल स्टेट्स अवेलेबल, सिक्वेंशियल बिकॉज पहले क्या किया था वो पता होना चाहिए तभी हम नेक्स्ट का काम करेंगे. ऑफकोर्स स्टेटिक क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा है, डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा ऑफकोर्स. ठीक है, और सिंगल एजेंट. ठीक है, तो समझ में आया सबको कि एक साथ बहुत सारे फीचर्स एनवायरनमेंट में हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हम इंटरएक्टिव इंग्लिश ट्यूटर की बात करते हैं. ठीक है, इंटरएक्टिव इंग्लिश ट्यूटर अगेन काइंड ऑफ एआई सिस्टम. ठीक है, सो इन दैट केस ऑब्जर्वेबल में हमारा पार्शियली ऑब्जर्वेबल होगा. ठीक है, सारी चीजें
मे बी पॉसिबल वो सिस्टम को नहीं पता है सामने जो भी लर्नर है उसके बारे में, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक या स्टोकेस्टिक, तो ये स्टोकेस्टिक इवेंट होगा, बिकॉज that interactive English tutor environment, that learner can ask any question. Maybe that question, that answer is not there with the tutor. That is also possible. Okay, so that is not a sequential regular action or whatever the next step is there, that is also known to the system. ऐसा नहीं है. So that's why this is stochastic environment. Then it is sequential environment, because that interactive English tutor should know whatever the previous communication done with the learner. ठीक है. It is dynamic environment, of course, changing with the time. Okay. Discrete, क्योंकि उसके कुछ rules जो है natural language processing के वो applied है, इसके लिए ये discrete रहेगा, and this can be multi agent. ठीक है, ये मल्टी एजेंट हो सकता है, मल्टीपल ट्यूटर जो है वो हमारे साथ बात कर रहे हैं, वो भी पॉसिबल, ठीक है। और ये सिंगल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम कौन सा है, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ, तो दिस वे वी आर हैविंग सम एग्जांपल ऑफ टास्क एनवायरनमेंट वेयर वी आर हैविंग डिफरेंट फीचर्स बेस्ड ऑन आवर प्रॉब्लम। क्लियर हुआ सबको टास्क एनवायरनमेंट? ठीक है। पहले हमने क्या दिखा था? पीस रिप्रेजेंटेशन for task environment, and then we have seen features of the task environment, and these are the examples. Okay. Hello ma'am. Yes. What is a fully observable? Fully observable means all the data known to the system. It means what? You are having all type of sensor to perceive your environment. Okay, so that is your fully observable. And sometimes for the system you don't have all the sensors, or maybe possible some sensors are not working. So now whatever the data you are taking from the environment, you are perceiving from the environment, that are not complete, you can say incomplete data you are having, and based on that you are making the decision and doing the action. Clear? So that is your partial environment. Clear? Hello ma'am. Stochastic also I want to ask. What is? Yeah, stochastic means random in nature. It means what? जब आप कोई इवेंट कर रहे हो, तो अगर आपको उसका नेक्स्ट स्टेप पता है, ठीक है, कि यही चीज, यही स्टेट आने वाला है, तो वो डिटर्मिनिस्टिक हो गया, ठीक है। बट अगर ड्राइवरलेस कार की बात करते हैं, तो ड्राइवरलेस कार में क्या होगा? अच्छा, जब हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो में हमको पता है कि अगर 5 आते हैं तो इसी को आगे बढ़ाना है, ठीक है ना? क्लियर हुआ? ठीक है। बट अगर आपके पास ड्राइवरलेस कार का एग्जांपल है, तो दैट इज स्टोकेस्टिक इन नेचर। इट मींस व्हाट? एनी स्टेट में कम, कोई डोमेस्टिक एनिमल आ गया बीच में, ठीक है, या कोई पेडेस्ट्रियल आ गया, या फिर किसी सामने वाले कार ने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, या फिर कोई सामने से ही कोई 2 व्हीलर आ गया, ठीक है, या फिर एक बहुत स्टीप टर्न आ गया है और वो टर्न के बाद पूरा खड्डा आ रहा है। तो दिस आर द एनवायरनमेंट विच इज रैंडम, कुछ भी हो सकता है, स्टेट कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। दैट इज स्टोकेस्टिक, ठीक है। थैंक यू। ओके, ठीक है। सो दिस आर द फीचर्स अवेलेबल विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एजेंट के टाइप कौन से हैं, ठीक है। एजेंट एज अ होल, ठीक है। एजेंट की जब हम बात करते हैं, तो एजेंट पूरा एजेंट है, वो सेंसर भी है, एनवायरनमेंट भी है, वो एक्चुएटर भी है, इफेक्टर्स भी है, एक्शन भी वो कर रहा है, एवरीथिंग जो है वो एजेंट है। हमने पहले भी बात की थी, एजेंट इज इक्वल टू आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम, बात किया था हमने, ठीक है। दैट इज व्हाट द आर्किटेक्चर ऑफ द होल एजेंट. Now agents can be grouped into 5 classes based on their degree of perceived intelligence and capability. Okay, so kitna, not necessary for all the problem you required fully functional AI system possible, ठीक है. It is based on your problem statement. Okay, now maybe possible sometimes you are having problem statement where you required very initial or basic AI system, but sometimes you required the high end AI system also. Okay, so that is what the difference. Okay, so हर बार आपको एक जैसा एजेंट तो यूज नहीं करना है, कितनी इंटेलिजेंसी देनी है, क्या उसके अंदर होना चाहिए, उसके बेस पे ये 5 जो है वो AI एजेंट जो है वो क्लासिफाई किए हैं. द फर्स्ट वन इज सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, then model based reflect agent, goal based, utility based and learning agent.
Okay, so these are the 5 types of agents available to perform the action in the environment. Clear? So now we will see the first one. सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ठीक है. तो जब हमने बेसिक डायग्राम देखा था एजेंट का, तो उस टाइम पे क्या था बेसिक डायग्राम में कि एनवायरनमेंट होता है. एनवायरनमेंट से सेंसर के थ्रू हम एनवायरनमेंट को परसेप्ट करते हैं, उसको समझते हैं, उसका डेटा लेते हैं, एंड देन वी बेस्ड ऑन द सेंसर डेटा दैट एक्चुएटर एंड अफेक्टर्स जो है वो वर्क करते हैं, एंड वॉट एवर द वर्क दे आर डूइंग दे डू एक्शंस इन द एनवायरनमेंट अगेन. ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो दिस इज व्हाट द सिंपल agent. Okay, now if we are talking about simple reflect agent, then what happened that through sensor we are percept the environment, and the question is what the word is like now. It means what? It is only accessing current state. Clear hua? Current state, whatever the state we are having currently, based on that the what action I should do now. ठीक है, तो यहाँ पे उसने जो भी लिया है वो करंट स्टेट के हिसाब से उसने पूरा सेंसर का डेटा लिया, एंड वॉट एवर द प्री डिफाइंड रूल्स, कंडीशन रूल्स आर देयर, बेस्ड ऑन दैट एंड यूजिंग द स्टेट ऑफ नॉलेज it will done action, okay, in the environment using actuators. Clear? So that is what simple reflect agent. तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो समझ में आएगा. The simple reflect agent or the simplest agent, this agent take decision on the basis of current percept and ignore the rest of the percept history. It means previously done steps, previously percept knowledge जो है उसका वो कोई यूज नहीं कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब उसका फीचर कौन सा है? एनवायरमेंट में देखेंगे तो फीचर कौन सा आएगा इसके अंदर? यस, एनीवन? एपिसोडिक. Yes, very good. So this is episodic. It means there is no percept sequence required in this environment. Clear हुआ सबको? And this agent only succeed if fully observable environment is there. पूरा state उसको मिल जाता है, पूरा knowledge environment का मिल जाता है, तो ही वो successfully action कर पाएगा. ठीक है, अभी समझा environment? ठीक है. The simplex agent does not consider any part of percept history during the decision and action process, as we discussed. Okay, now this agent works on condition action rule. Okay, उसके पास पूरे predefined rule है. ठीक है, उसी के ऊपर काम करता है. अगर उसको रूम को क्लीन करना है तो उसके लिए भी उसके पास रूल है. It works only if there is a dirt in the room. क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं एनवायरनमेंट में कंडीशन एक्शन रूल का, तो सपोज एक रूल हमने ड्राइवरलेस कार के अंदर दिया है कि इफ कार इन फ्रंट इज ब्रेकिंग. ठीक है, इसका मतलब सामने वाली जो कार है, आगे हमारी जो आगे कार है, वो अगर ब्रेक लगाता है तो हमको भी ब्रेक अप्लाई करना है. दैट इज द रूल. ओके, एंड दैट्स व्हाई जब वो ब्रेक लगा रहा है कैसे पता चलेगा? तो सेंसिंग दैट रेड लाइट, सेंसिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल. ठीक है, सो वो सारे डेटा से वो सेंस कर रहा है, एनवायरनमेंट को परसेप्ट कर रहा है. ठीक है, और उसके बाद अगर कोई फ्रंट में कार है वो अगर ब्रेक लगा रही है तो आपको भी ब्रेक लगाना है. दिस इज वन ऑफ द रूल. सो दैट वे द होल एनवायरनमेंट रूल्स आर सेट एंड बेस्ड ऑन दैट सिस्टम विल वर्क. That's it. Okay. So जो भी रूल्स उसने डिफाइन किए हैं उसके ऊपर ही काम करेगा. अगर उसके ऊपर कोई स्टॉकिस्टिक स्टेट आ जाता है, कोई रैंडम स्टेट आ जाता है, तो वो काम नहीं कर पाएगा. क्लियर हुआ? दिस इज वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ सिंपल रिफ्लेक्ट एजेंट. क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ एजेंट? द प्रॉब्लम इज दे हैव वेरी लिमिटेड इंटेलिजेंसी. फर्स्ट ऑफ ऑल, do not have knowledge of non-perceptual part of the current state. ठीक है, जहां पे हम परसेप्ट नहीं कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, उसको वो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है. ठीक है, एंड नॉन अडेप्टिव नेचर. ओके, नॉन अडेप्टिव नेचर है, वो एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टिव नहीं है. ठीक है,
So these are the limitation, and the most important the limitation of this particular agent is that it work on only current state. वो पहले का state देख ही नहीं रहा है, ठीक है. So that is what simple reflect agent. सबको समझ में आया simple reflect agent? Clear everyone? ठीक है. So now we will go for the next one, that is model based reflect agent. ठीक है. So model based reflect agent में क्या होता है? First we will see this diagram. Okay, so now you can see here, these are the diagrams, steps are same as previous one. इतना अगर part हम देखेंगे, you can see my arrow, right? So ये part जो है वो exactly similar of this simple reflect agent, but this three statements are extra in this particular reflect agent, which is model based reflect agent. Okay. So now here, the sensor is sensing the data from the environment, okay, and percepting the environment, okay, and it is working on what the world is like now. It means again it is on the current state, but the system is having again previous states also, that is called reflect state agent. It means the previously done action is also stored in the system. Clear? So now the percept history is also available with the system. Okay. Now how the world evolve? Now every time we don't have to do the same thing again and again. Maybe possible some new things are also there to perform or to act. Okay. So based on that, we require to change our state. We require to change our knowledge, and that is also possible in this. Clear? And based on that, what my action must be. Okay, so that is these are the things available with the current state. The current state is also previous state भी है उसके पास, कुछ modifications available करना है तो वो भी है उसके पास, अब क्या action करना चाहिए वो भी है उसके पास, and then it will go for the action. Okay, and the rules are also available. Okay, so उसके बेस पे वो सब कुछ स्टडी करके फिर वो एक्शन करेगा. क्लियर हुआ? सो दिस इज व्हाट द मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्ट एजेंट. सो अभी आपको ये समझ में आएगा व्हाट इज मॉडल बेस्ड. मॉडल बेस्ड एजेंट कैन वर्क इन अ पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट एंड ट्रैक द सिचुएशन. ठीक है, पार्शियली ऑब्जर्वेबल मीन्स मे बी पॉसिबल नाउ currently that sensor is not having sensor is not able to sense the data. ठीक है, ऐसा पॉसिबल है. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो प्रीवियसली हिस्ट्री डेटा जो अवेलेबल है उसके बेस पे काम करेगा. समझ में आया? और अभी तक का उसका जो नॉलेज गेन किया है, जो उसको उसने इंजन को ट्रेन किया है, उसके बेस पे वो काम करेगा. ठीक है, सो अगर उसको कोई डेटा इनकम्प्लीट भी मिलता है तो भी वो उसको तो भी उस इन्वायरमेंट में भी वो वर्क करेगा. सो दैट्स व्हाई दैट मॉडल बेस्ड एजेंट कैन वर्क इन अ पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट. क्लियर एवरीवन? ठीक है, a model based agent has two parts as we have seen. The first is model, that is how things happen in the world. Okay, so it's a knowledge. ठीक है, and internal state means percept history. ठीक है, तो ये दोनों पे काम कर रहा है. वो दोनों चीजें हमने देखी यहाँ पे. ठीक है, ये these are the two things, ये दो चीजें. ठीक है, so this agent have the model which is a knowledge of the world, and based on the model they perform the action. ठीक है, तो जो भी हमारे पास नॉलेज है उसके बेस पे वो काम करता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपडेटिंग द एजेंट स्टेट्स with the required information about how the world evolve and what the action of how the agent's action affect the world. ठीक है, तो उसके बेस पे वो स्टेट को भी चेंज कर रहा है. ठीक है, सो वो स्टेट कौन सी स्टेट को चेंज कर रहा है, जो हमारा पास ये हिस्ट्री डेटा है उसको भी वो, उसमें भी वो नॉलेज को ऐड कर रहा है. ठीक है, तो ये जो स्टेट है उसमें भी नॉलेज ऐड होता जाता है और उसके बाद आपको परफेक्ट एक्शन यहाँ पे मिलता है. ठीक है, तो इसका भी स्टडी होगा, रूल्स का भी स्टडी होगा और उसके बेस पे फिर एक्शन होगा. ठीक है, क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पे हमारे पास ये स्टेट जो है वो एक्स्ट्रा है जहाँ पे परसेप्ट हिस्ट्री है इन मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्ट एजेंट. ओके, नाउ द थर्ड वन इज गोल बेस्ड एजेंट. नाउ
यहाँ पे हम जितना भी एक्शन कर लेते हैं इन मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्ट एजेंट, if we not meet our goals, then whatever the action we have done, that actions are not at all required one, right? ठीक है, तो वो हमने जो काम किया है वो काम की जरूरत ही नहीं थी अगर हम हमारे गोल को मीट नहीं कर रहे, ठीक है. सो नाउ माई एक्शन शुड मीट माई गोल्स, क्लियर. और वो कब होता है, जब आपको परसिस्टेंट एक सिस्टम चाहिए जहां पे आपका गोल अचीव होना चाहिए, ठीक है. सो उसके लिए हमारे पास है गोल बेस्ड एजेंट. यहाँ पे आप देख सकते हो गोल बेस्ड एजेंट. नाउ इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में अगेन सेंसर इज सेंसिंग द डेटा, एनवायरमेंट डेटा, ठीक है. यहाँ पे भी उसके पास प्री हिस्टोरिकल डेटा भी है. अगर उसमें कुछ नॉलेज ऐड करना चाहिए तो वो नॉलेज भी ऐड करते हैं थ्रू हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व, ओके, व्हाट एक्शन वी रिक्वायर्ड टू डू, एवरीथिंग. बट एवरी टाइम विथ एवरी एक्शन हम एक क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, दैट इज व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए, ठीक है. अगर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, वी आर रीचिंग टू द गोल, टूवर्ड्स द गोल, कि हम गोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है. तो वो टेस्टिंग हम हर बार करेंगे, ठीक है. एंड बेस्ड ऑन दिस गोल एंड बेस्ड ऑन दिस एक्शन वी विल परफॉर्म द एक्शन. क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है. सो हमारे पास ऑलवेज हर स्टेप के साथ क्या होगा, गोल टेस्ट. देखा था ना हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स में जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है उसके अंदर था गोल टेस्ट. तो वो यहाँ पे हो रहा है हर बार गोल टेस्ट, कि वेदर वी आर रीचिंग टू द गोल और नॉट, हम टूवर्ड्स गोल है कि नहीं, या फिर हम गोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो वो हम यहाँ पे परसेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू एक्चुएटर एंड इफेक्टर, एंड दैट एक्शन वी विल परफॉर्म इन द एनवायरनमेंट इटसेल्फ. या निशा, हाउ मॉडल बेस्ड इज पार्शियली ऑब्जर्वेबल? Model based is partially observable because if some data we don't have through sensor, then that data we can get through percept history, ठीक है. पहले अगर हमने उस टाइप का काम किया होगा, उस टाइप का डेटा कलेक्ट किया होगा, तो वो हिस्ट्री में होगा और वो स्टेट से हमें पता चलेगा, वो स्टेट के पास पूरा नॉलेज है और उससे हम वो डेटा जो है वो लेंगे, ठीक है. सो इस दैट्स व्हाई इट कैन वर्क ऑन पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट आल्सो, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास हिस्ट्री डेटा है, ठीक है. यस, सो बैक टू गोल बेस्ड एजेंट. गोल बेस्ड एजेंट का एग्जांपल एक लेंगे तो समझ में आएगा. द एग्जांपल इज एट अ रोड जंक्शन द टैक्सी कैन टर्न लेफ्ट एंड राइट और गो स्ट्रेट. अब रोड जंक्शन है, वहां पे 4 रास्ता है, तो टैक्सी लेफ्ट भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है, स्ट्रेट भी जा सकती है. तो हर बार मैं क्या बोल रही हूँ, what it will be like if I do sorry, what it will be like if I do action A. It means goal testing. तो goal testing में मुझे कहाँ जाना है, I require to reach to the destination. So now based on GPS system I will check whether I am towards my goal or not, and based on that I will do my action. Based on that I will maybe possible go to straight, okay, और मैं लेफ्ट और राइट नहीं जाऊंगी. वहां पे आपको क्या मिलेगा, बड़ा रास्ता मिलेगा, ठीक है. तो यहाँ पे गोल टेस्टिंग हो रही है हर बार, ठीक है, और उसके बेस पे एक्शन हो रहा है. क्लियर हुआ सबको ये, ठीक है. सो दैट इज व्हाट गोल बेस्ड. तो यहाँ पे अभी आपको समझ में आएगा, द नॉलेज ऑफ द करंट स्टेट एनवायरनमेंट इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट टू डिसाइड फॉर एजेंट व्हाट टू डू, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग गोल, ठीक है. गोल बेस्ड एजेंट एक्सपांड द कैपेबिलिटी ऑफ द मॉडल बेस्ड एजेंट बाय having the goal information. So यहाँ पे आपके पास टारगेट क्या है, टारगेट क्या अचीव करना है वो पता है, ठीक है. So they choose an action so that they can achieve the goal. Correct, समझ में आया? This agent may have to consider a long sequence of possible action before deciding whether the goal is achieved or not. So यहाँ पे यहाँ पे आप जब स्ट्रेट जाने का डिसीजन लेते हो, उससे पहले क्या होता है, तो उससे पहले लेफ्ट का, राइट का, सबका प्लानिंग होगा, कैलकुलेशन होगा, गोल को रीच करने, टारगेट रीच करने के लिए कितना पाथ कॉस्ट लगता है, मे बी वो कैलकुलेट होगा, ठीक है. एंड बेस्ड ऑन दैट वी कम टू द कंक्लूजन दैट ओके द सिस्टम
शुड टेक दिस पाथ, ओके, उसको स्ट्रेट जाना चाहिए. बट वो पहले सब कुछ जो कैलकुलेशन हो रहा है दैट इज नथिंग बट अ डिफरेंट सिनेरियो कॉल्ड सर्चिंग एंड प्लानिंग, ओके, विच मेक्स एन एजेंट प्रोएक्टिव. क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है. सो उस हिसाब से गोल बेस्ड एजेंट जो काम करता है. तो पहले हमारे पास सिर्फ एक सिंपल एजेंट था जिसके पास हिस्ट्री डेटा नहीं था. देन मॉडल बेस में हिस्ट्री डेटा पिक्चर में आया. देन गोल बेस में नाउ वी आर हैविंग टारगेट आल्सो, व्हाट टारगेट वी रिक्वायर टू अचीव, and now we will go to the next. But this goal based agent is having some limitation. Okay, limitation क्या है? So suppose हम वापस driverless car की बात करते हैं. तो driverless car, there are many action sequence that will get the taxi to its destination, right? अब ये sequence बहुत सारे हो सकते हैं. Thereby because we require to achieve the goal, we require to go to the target. बट वो टारगेट के लिए देर आर सो मैनी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल एंड देर आर सो मैनी परफॉर्मेंस मेजर्स. ओके, हमने कल परफॉर्मेंस मेजर की बात की थी, दैट मैट्रिक्स के आपने कैसा गोल तो अचीव किया पर वो गोल अचीव करने में आपको क्या क्या लगा है, ठीक है, और आपका जो परफॉर्मेंस है उसको आपने सेटिस्फाई किया है कि नहीं. ठीक है. सो मे बी पॉसिबल मेरा जो गोल है वो सिर्फ टारगेट तक पहुंचना नहीं है पर quicker, safer, more reliable and cheaper. These are also my goal. तो I am having multiple goals. ठीक है. So multiple goals में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि मैं फास्ट पहुंचने के चक्कर में और शॉर्टकट लेने के चक्कर में हो सकता है कि वो रिलायबल जर्नी ना हो, सेफ जर्नी ना हो. ठीक है ना. इतना स्पीड उसने लिया कि भाई कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि द गोल्स आर इन बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग. ठीक है. एक गोल अगर अचीव कर रहे हैं तो दूसरा नहीं मिलेगा. समझ में आया? ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही गोल बनाना है, हो सकता है आपके मल्टीपल गोल्स हो. ठीक है. सो व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग गोल ओनली सम ऑफ विच कैन बी अचीव्ड. ठीक है. कुछ ही हम अचीव कर सकते हैं एंड दैट जो आपको अचीव करना है वो यूटिलिटी फंक्शन में आप स्पेसिफाई करोगे. ठीक है. एंड दैट वे वी आर हैविंग अनदर टाइप ऑफ एजेंट दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी एजेंट. ठीक है. समटाइम्स आई वांट टू emphasize on only safety and reliability. Sometimes I want to emphasize on quickness and cheaperness. ठीक है. तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं इसके अंदर और उसके बेस पे आप फिर वो सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है. क्लियर हुआ सबको? ठीक है. तो इस सो जो लिमिटेशन गोल बेस्ड एजेंट के अंदर है वो हम नेक्स्ट यूटिलिटी बेस्ड एजेंट के अंदर वो ओवरकम करते हैं. क्या ओवरकम किया, समझ में आया आपको? ठीक है. सो इफ द सिस्टम इज हैविंग ऑल्टरनेटिव्स टू अचीव द गोल, अगर हम सिर्फ गोल टेस्ट की ही बात करें कि भाई मेरा ये टारगेट अचीव करना है कि डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए और हर बार मैं गोल टेस्ट के अंदर सिर्फ डेस्टिनेशन देख रही हूं. ठीक है. हाँ, तो एक गोल है तो ठीक है, वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए तुम्हारे पास 5 रास्ते हैं. ठीक है. बट सपोज मेरे पास मल्टीपल गोल्स हैं तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या कौन सा पाथ लेंगे. सो हियर वी रिक्वायर टू टेक द बेस्ट पॉसिबल पाथ, बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव और उसके लिए हमारे पास है यूटिलिटी एजेंट. ठीक है. सो यूटिलिटी एजेंट सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे वर्क करता है. ठीक है. और क्या इसके अंदर नया है. ठीक है. सो अगेन वी आर हैविंग सेंसर, वी आर हैविंग सेंसर विच परसेप्ट द एनवायरमेंट. अगेन प्रीवियस हिस्ट्री है हमारे पास, वो प्रीवियस हिस्ट्री में नॉलेज ऐड हो रहा है, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व. सो बेस्ड ऑन दैट वी आर एडिंग द नॉलेज इन द स्टेट. ठीक है. और उसके हिसाब से क्या एक्शन करना चाहिए वो भी हम यहाँ पे सजेशंस दे रहे हैं. ठीक है. वी आर हैविंग करंट स्टेट ऑल्सो. नाउ हम ये भी चेक कर रहे हैं गोल टेस्टिंग. ठीक है. व्हाट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए. ठीक है. सो आई एम रीचिंग टूवर्ड्स द टू द गोल और नॉट. ठीक है. आई एम टूवर्ड्स द गोल और नॉट. ठीक है. बट वन मोर थिंग हियर वी हैव एडेड, दैट इज हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट. एम आई हैप्पी टू डू दिस स्टेट. ठीक है. मुझे जल्दी पहुंचना है पर अगर ड्राइवरलेस कार 200 की स्पीड में चला रही है तो आई विल बी हैप्पी.
इन दैट एनवायरमेंट? नो. ठीक है, तो मेरा पूरा रास्ता कैसे जाएगा? बीपी रहेगा 240 जितना. ठीक है, सो दैट वे आई एम नॉट बी हैप्पी मे बी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई this utility agent is having that best possible alternative path selection method, and based on that वो जिस हिसाब से सिस्टम हैप्पी रहे, जो सिस्टम जो है वो बेस्ट पॉसिबल आउटपुट दे, उस हिसाब से वो काम करे. ठीक है, और ऐसे फिर वो एक्शन परफॉर्म करेगा एक्चुएटर इन द एनवायरमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम और देखेंगे तो समझ में आएगा कि यूटिलिटी एजेंट क्या है. इट इज सिमिलर टू द गोल बेस्ड एजेंट but provide an extra component of utility measurement which makes them different by providing a measure of success at a given state. Okay, so success measure करना इसका मतलब कि हम टारगेट पे पहुंच गए तो वो सक्सेस नहीं है, बट वो सारे हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कवर करके अगर हम टारगेट पे पहुंच रहे तो वो सक्सेस. क्लियर हुआ? So here in spite of having goal we are having performance measure also. ठीक है, so utility based agent act based not only based on goal but also the best way to achieve the goal. ठीक है, and it useful when there are multiple possible alternatives available. Agent has to choose in order to perform the best action. ठीक है, so यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? How efficiently we reach to the destination. ठीक है, with all the performance matrix that is possible through this utility based agent. ठीक है, so this is utility based agent, and after that now this is there any again limitation of this utility based agent? Yes, anyone? Okay, so one of the limitation is whatever the actions we are performing. ठीक है, हमको ये लग रहा है कि हम बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस भी मेजर कर रहे हैं, हम अचीव भी कर रहे हैं, सब कुछ हम टारगेट पे भी पहुंच रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? हम ही डिसाइड कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं. देयर इज नो क्रिटिक्स, देयर इज नो फीडबैक फॉर द सिस्टम स्टेप्स. ओके, तो सिस्टम ने जो भी स्टेप्स लिए हैं उसके लिए कुछ फीडबैक नहीं दिया गया है कि ये अरे तुम ऐसा नहीं ऐसा भी कर सकते थे. ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से ऐसा करना. सो दैट इज व्हाट learning agent. The next agent is learning agent. Okay, so the agent will learn from the mistake. ठीक है, so that is also possible. So again we are having sensor which percept environment, and the sensors के पास और क्या चीज है? तो हमारे पास performance standards है, उसके पास एक क्रिटिक सिस्टम है जो फीडबैक देता है हर स्टेप के ऊपर. ठीक है, कि ये सही था कि गलत था, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, नॉलेज भी दे रहा है वो. ठीक है, उसके बेस पे हमारे पास लर्निंग एलिमेंट है जो लर्न कर रहा है बेस्ड ऑन क्रिटिक्स डेटा. ठीक है, तो क्रिटिक्स ने जो भी फीडबैक दिया उसके बेस पे क्या कर रहा है? लर्न कर रहा है. ठीक है, वो लर्निंग के बेस पे परफॉर्मेंस एलिमेंट में चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, और फिर वो जो परफॉर्मेंस एलिमेंट है वो अपना नॉलेज लर्निंग एलिमेंट को वापस कर रहा है कि हाँ आपने जो बोला वो सही है या आपने जो बोला वो गलत है. ठीक है, क्योंकि उसके पास सेंसर का डेटा भी है और उसके पास प्रीवियस हिस्ट्री डेटा भी है. ठीक है, अगर वो सही है तो उस हिसाब से वो काम करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट लर्निंग एलिमेंट विल गिव लर्निंग गोल्स. ठीक है, to problem generator. It means whatever the information I am having, based on that I can create new information and do new experiments. और नए एक्सपेरिमेंट के लिए नए एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, कैसे? नई चीजें लर्न किया तो वो नॉलेज परफॉर्मेंस एजेंट को दिया. वो नॉलेज जब परफॉर्मेंस एजेंट के पास आया, उसके अलावा लर्निंग एजेंट के जो भी गोल थे, ठीक है, उसके बेस पे मतलब जो भी एग्जिस्टिंग डेटा हमारे पास है उसके बेस पे हमने नॉलेज इन्फर किया. नॉलेज इन्फर करने से हमारे पास नया नॉलेज आया और वो नॉलेज को हमने डोमेन में अप्लाई किया और नए एक्सपीरियंस लिए. ठीक है, जो हमने पहले नहीं किए थे. दैट इज व्हाट लर्निंग थ्रू मिस्टेक्स. तो लर्निंग मिस्टेक से लर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने मिस्टेक को सुधार रहे हैं, तो नई चीज कर रहे हैं और नई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं.
ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी, ठीक है. एंड देन आफ्टर दिस स्टडी, ऑल द स्टडी, दैट परफॉर्मेंस एलिमेंट विल डू एक्शन थ्रू इफेक्टर्स इन एनवायरमेंट. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, अगेन हम एक थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. ठीक है, सो लर्निंग एजेंट इन एआई इज द टाइप ऑफ एजेंट विच कैन लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंस. सो इट इज हैविंग लर्निंग कैपेबिलिटी. It start to act with basic knowledge and then able to act and adapt automatically through learning. ठीक है, पहली बार उसके पास क्या होगा, बेसिक इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मॉडल ट्रेन होता है और वो मॉडल में इतनी सारी नॉलेज इकट्ठा हो जाती है कि उसके ऊपर वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है. ठीक है, जो भी मिस्टेक हुआ उसको क्लियर किया, उसको डोमेन नॉलेज के अंदर ऐड किया और फिर नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आती है तो वो मिस्टेक नहीं करेगा. ठीक है, बट सपोज कोई स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट में कोई नई मिस्टेक हो गई तो वापस से लर्न करेगा. सो एवरी टाइम इन लर्निंग प्रोसेस वो क्या कर रहा है, नॉलेज ऐड कर रहा है. ठीक है, समझ आया सबको. ठीक है, तो नाउ इन दिस लर्निंग एजेंट हमारे पास चार चीजें मेन है. ठीक है, चार है ना, 1 2 3 4, ये चार चीजें मेन है. सबसे पहला है लर्निंग एलिमेंट. लर्निंग एलिमेंट क्या है ये, ठीक है, सो लर्निंग एलिमेंट क्या कर रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंप्रूवमेंट्स बाय लर्निंग फ्रॉम एनवायरनमेंट. ठीक है ना, तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा, थ्रू फीडबैक. ठीक है, सेंसर ने सेंस करके क्रिटिक्स में डेटा डाला, उसके बाद पहले से भी डेटा उसके पास था, उसके बेस पे उन्होंने क्रिटिक्स ने कुछ इन्फर किया और इसको फीडबैक दिया पास्ट एक्शन का, उसके बेस पे ये लर्न कर रहे हैं. ठीक है, सॉरी. ठीक है, सो दैट इज लर्निंग एलिमेंट. द सेकेंड वन इज क्रिटिक. Critic is learning element take feedback from critic which describe that how well the agent is doing with respect to a fixed performance standard. ठीक है ना, तो ये critics क्या है, वो किसको फीडबैक दे रहा है, लर्निंग एलिमेंट को. एंड उसके पास वो फीडबैक देने के लिए वो सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, तो सेंसर से तो डेटा ले ही रहा है, पास डेटा भी उसके पास है, पूरी सिस्टम नॉलेज उसके पास है, सिस्टम नॉलेज डेटाबेस यू कैन से. ठीक है, देन आफ्टर द थर्ड वन इज परफॉर्मेंस एलिमेंट. परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास कहां से डेटा आ रहा है, लर्निंग एलिमेंट से भी आ रहा है, सेंसर से भी आ रहा है. ठीक है, सो परफॉर्मेंस एलिमेंट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शन. ठीक है ना, तो लर्निंग ने जो भी बोला है वो भी वो परस्यू कर रहा है, करंट स्टेट जो सेंसर ने दिया डेटा वो भी वो ले रहा है, उसके बेस पे वो प्लानिंग करेगा, सर्चिंग करेगा और वो कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि मुझे क्या एक्शन करना चाहिए. प्रॉब्लम जनरेटर. प्रॉब्लम जनरेटर क्या है यहाँ पे, सॉरी. So problem generator is getting data through learning element as a learning goal. ठीक है, तो learning goal का मतलब existing knowledge से और knowledge बढ़ाना. ठीक है, so this component is responsible for suggesting action that will lead to new and informative experiences. ठीक है, और वो suggestions कैसे होंगे कि existing जो knowledge है उससे वापस से उसने नया knowledge infer किया और उसके बेस पे वो डेटा उसने आगे भेजा. ठीक है, और उसके बेस पे फिर बाद में एक्शन होगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द लर्निंग एजेंट इज. सो इससे क्या होगा, पूरा परफॉर्मेंस है जो वो प्रॉपर एनालाइज होगा, मिस्टेक्स नहीं होगी और उसके बेस पे वो व्हाट एवर द मिस्टेक सिस्टम इज डूइंग it will learn from its mistake and it will not repeat the mistake next time because the data knowledge stored in the system again and again. Okay, so that is what machine learning system is, right? So that way we have seen 5 types of agent. Okay, तो सब लोग बताएंगे कौन कौन से टाइप के एजेंट हमने देखे अभी तक. सिंपल रिफ्लेक्ट एजेंट जो फुल ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम करेगा एंड जिसके पास कोई प्री हिस्ट्री नहीं है. ठीक है, ओके. देन मॉडल बेस्ड, वेरी गुड. मॉडल बेस्ड में हमारे पास नाउ परसेप्ट हिस्ट्री इज आल्सो अवेलेबल. ओके, देन आफ्टर गोल बेस्ड टारगेट को देखकर काम करेंगे. ठीक है, देन आफ्टर
वेरी गुड, यूटिलिटी बेस, वेरी गुड मयूर, निशा, एवरीवन। यूटिलिटी बेस में हम क्या कर रहे हैं कि इफ वी आर हैविंग मल्टीपल गोल्स, then how we can perform, how we can give the solution with best alternative. Okay, तो जहां पे हम सब कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स को यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। गोल तो है ही हमारा, पर साथ में हमें परफॉर्मेंस मेजर पे भी ध्यान देना है, ठीक है। एंड देन आफ्टर द लास्ट वन इज लर्निंग एजेंट। यस, नम्रता, शुभम, आयुष, वेरी गुड, निशा। सो लर्निंग एजेंट क्या होता है कि विच कैन लर्न थ्रू द मिस्टेक, और वो काम कौन कर रहा है? क्रिटिक्स। क्रिटिक्स के पास पूरा नॉलेज डेटाबेस है और उसके बेस पे वो क्या करेगा, और करंट सिस्टम का स्टेटस भी है, तो उसके बेस पे वो क्या करेगा? फीडबैक देगा कि ये पर्टिकुलर एक्शन के लिए पहले तुमने ये मिस्टेक किया था, अब मत करो, ठीक है। उस टाइप का फीडबैक वो देगा, ठीक है ना, और उसके बेस पे फिर आगे लर्न करके वो एक्शन करेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन टाइप्स ऑफ एजेंट। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विथ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली हम कैसे एआई सिस्टम के लिए काम कर सकते हैं, और उसके लिए जो भी मशीन्स है वो हमारा जो ह्यूमन जो कम्युनिकेट करता है वो सेंटेंस के फॉर्म में करता है, और वो सेंटेंस के फॉर्म से वो कंक्लूजन तक पहुंचता है। और अगर हमें ह्यूमन को ही इमिटेट करना है रोबोट्स के अंदर, तो उसमें भी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। हम पूरे दिन में ये काम करते रहते हैं लॉजिकल, ठीक है, ये है तो ये है, ये है तो ये नहीं है, ये है तो ये करना है, ठीक है। जैसे 9-10 हो गया तो ये लेक्चर अटेंड करना है, 10-10 हो गया तो ये लेक्चर अटेंड करना है। सो एवरी टाइम हमारा माइंड जो है लॉजिकल रीजनिंग देता रहता है, ठीक है। तो वो रीजनिंग हमारा ब्रेन कैसे काम करता है उसके ऊपर, उसके ही बेस पे रोबोट कैसे काम करते हैं वो हम देखेंगे। Thank you, everyone.